Good morning, students. So, I am here with the chapter 1 of science class 9th. The chapter 1 is motion और जो प्रीवियस क्लासेस है उसमें हम इस चैप्टर में कई सारे टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं. जो टॉपिक्स हमने कवर किए थे वो थे व्हाट इज मोशन, व्हाट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट and the difference between them, and after that we covered the topic uniform motion and non-uniform motion, speed and velocity, acceleration. So now today we will discuss the topic that is equations of uniformly accelerated motion. So we are going to discuss the topic equations of, so the today's topic is equations of uniformly accelerated motion. So there are three equations of uniformly accelerated motion. There are three equations. So the first equation is V equals to U plus AT. V equals to U plus AT. The second equation is S equals to ut plus half at square, and the third equation is v square equals to u square plus 2as. So in these three equations, v is final velocity, u is initial velocity, small a is acceleration, and the t is time taken. In the second equation, all the variables are similar to the first equation, but the s is distance. In this case also, s is distance, a is acceleration, u is initial velocity, and v is final velocity. So we will solve these equations one by one, starting from the first equation of motion. So the first equation of motion is, मैंने जैसे अभी आपको बताया था, द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज v इक्वल्स टू u प्लस at, and this equation gives the velocity, and this equation gives the velocity acquired by a body in time t. सो इस इक्वेशन से हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? वी कैन फाइंड आउट द फाइनल वेलोसिटी, वी कैन फाइंड आउट द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी. ठीक है, जो वो बॉडी एक्वायर कर रही है टी सेकेंड्स में. अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी तो टी सेकेंड्स बाद उसकी जो वेलोसिटी होगी वी कैन फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, दैट इज v इक्वल्स टू u प्लस at. सो लेट्स सी हाउ वी फाइंड दिस फॉर्मूला. एज वी ऑल नो, the formula of acceleration equals to
चेंज इन वेलोसिटी upon time taken. So we can write this change in velocity as, change in velocity means final velocity minus initial velocity. Divided by time taken. Now we can write it as, acceleration को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं a से, फाइनल वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय v, इनिशियल वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय u, टाइम इज रिप्रेजेंटेड बाय t. So now by cross multiplication we will get v minus u equals to a into t, और we can write it as, हम इस इक्वेशन को और किस तरीके से लिख सकते हैं, we can write it as v equals to u plus at. इस u को हम उधर ले गए तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, सो v equals to u plus at. मैं so in this equation you are seeing the v equals to u plus at. V is final velocity, u is initial velocity, a is acceleration, t is time taken. So this is the way we can find out this first equation of motion. Rather say these equations are for uniformly accelerated motion. Okay, so this is our first equation, you can note it down. Now we will solve for second equation of motion. So second equation of motion is what? First of all we should know what is the second equation of motion. It is s equals to ut plus half at square. S equals to ut plus half at square. So इस इक्वेशन का क्या मतलब है? दिस इक्वेशन gives us the distance traveled. फर्स्ट इक्वेशन में हम लोगों ने फाइंड आउट किया था फाइनल वेलोसिटी इन टाइम t, बट इन दिस इक्वेशन वी आर गोइंग टू फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन टाइम t. In time t. So let's find out कि हाउ टू सॉल्व दिस इक्वेशन. अभी इसको ड्राइव करते हैं हम लोग, डेरिवेशन इसका अभी हम लोग करेंगे कि किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं. यहां पर हेयर एस इज व्हाट? डिस्टेंस. एस इज डिस्टेंस. सो इससे पहले की क्लासेस में मैंने आपको बताया था इसको सॉल्व करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूले से. सो मैंने आपको बताया था कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, एवरेज वेलोसिटी होती है हमारी फाइनल वेलोसिटी. यहाँ से आपका डेरिवेशन स्टार्ट हो रहा है. फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन 2. So average velocity इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं v से, इनिशियल वेलोसिटी को u से, एंड डिवाइडेड बाई 2. सो दिस इज अवर एवरेज वेलोसिटी. आफ्टर दैट जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा
इफ वी से दैट आफ्टर टाइम टी हमको फाइंड आउट करना है। सो टाइम टी में हमने जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो कितना करेगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड का जो यहाँ पे फॉर्मूला होगा दैट इज एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। एवरेज वेलोसिटी अभी अभी हम लोगों ने फाइंड आउट की थी। एवरेज वेलोसिटी इज v प्लस यू अपॉन टू। सो हम क्या कर सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे v प्लस यू अपॉन टू इंटू टाइम कितना है t। सो एंड डिस्टेंस ट्रेवल को हम जो डिनोट कर रहे हैं वो डिनोट कर रहे हैं s से। सो s इक्वल टू v प्लस यू अपॉन 2 into t. Now we have got this s is equal to this. Now we have solved from first equation of motion, from first equation we have v equals to u plus at. From first equation we have v equals to u plus at. Put this value in equation this. So we get, so s equals to क्या हो जाएगा, अगर मैं v की जगह पे रख रहा हूं u plus at, क्या हो जाएगा u plus at प्लस u अपॉन 2 मल्टीप्लाई t। आगे फर्दर ये सॉल्व करके हो जाएगा u प्लस यू 2u प्लस at अपॉन 2 इंटू t। नाउ वी कैन राइट इट एज s इक्वल्स टू, इसको ब्रेक करते हैं, तो ब्रेक करने पर वी विल गेट u प्लस हाफ at into t and finally multiplying by t in this equation we will get s equals to t से इसको मल्टीप्लाई करेंगे we will get ut प्लस t से इसको मल्टीप्लाई करेंगे we will get half at square. So this is the way we got our final equation, that is second equation, s equals to ut plus half at square. So students इसको आप एक बार और ट्राई कीजिएगा, एक बार देखिएगा कैसे इसको फाइंड आउट किया। मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन 2, एवरेज फाइंड आउट किया। नाउ वी हैव एवरेज वेलोसिटी, देन वी कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्टेंस हम लोग अब फाइंड आउट कर लेंगे, क्या करेंगे हम लोग टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, एवरेज वेलोसिटी को हमको डिस्टेंस मिल जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वहां से हमने ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकाली, दैट इज एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। सो एवरेज वेलोसिटी हमारी कितनी है v प्लस यू अपॉन टी, यहां पे हमने रखा टाइम की जगह पे t। नाउ फर्स्ट इक्वेशन जो हमारी थी वो थी v इक्वल्स टू u प्लस at। सो उस फर्स्ट इक्वेशन से हमने v इक्वल्स टू u प्लस at हमने यहां पे पुट किया, v की जगह पे हमने रखा u प्लस at। सो वी विल गेट u प्लस at प्लस u अपॉन 2 इंटू टी। सो नाउ u प्लस u इक्वल्स टू 2u प्लस at अपॉन 2 इंटू टी। इसको आपने ब्रेक कर लिया तो ये हो जाएगा 2u अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, u प्लस at अपॉन 2 यानी हाफ at इंटू टी। नाउ फाइनली मल्टीप्लाइंग दिस by t we will get ut plus half at square. So this is our second equation. So इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और एक बार खुद से भी करके देखिएगा। Now let's move towards the third equation. So let's move towards the third equation.
The third equation of motion, the third equation of motion is v square equals to u square plus 2as. This is our third equation. So what is the physical significance of this equation? It gives the velocity acquired. It gives, क्या बताती है ये इक्वेशन? It gives the velocity acquired by a body in traveling the distance s. ये इक्वेशन आपकी ये बताती है कि कोई बॉडी एस डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना वेलोसिटी एक्वायर कर रही है. सो अभी हम लोग इस इक्वेशन को भी अब ड्राइव करते हैं, ड्राइव करेंगे. सो अच्छे से समझिएगा. जो सेकंड इक्वेशन है अभी अभी हम लोगों ने सॉल्व की थी, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. अभी अभी हम लोगों ने इसको सॉल्व किया था. s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. बट फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, बट फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, इसको हम यहां पे कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन 1. बट फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन वी हैव v इक्वल्स टू u प्लस ए टी. इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं. ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है. इसको हमने रीअरेंज किया, रीअरेंज करके हम लिख सकते हैं ए टी. वी कैन ऑल्सो राइट इट एज ए टी. ए टी को यहीं रखिए, इक्वल्स टू यू को इधर हो जाएगी, क्या हो जाएगा v माइनस यू. ए टी इक्वल्स टू v माइनस यू. और हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं t इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन a. t इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन a. नाउ पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ t, नाउ we have the value of t. now put this value of t, इस t की वैल्यू को हम किस में रख देंगे? इक्वेशन 1 में. इक्वेशन 1 में रखते हैं तो लिखेंगे now put this value of t in equation 1. ये इक्वेशन 1 है हमारी. we have, क्या हो जाएगा? s इक्वल्स टू u मल्टीप्लाई t की जगह पे v माइनस यू अपॉन a प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. हाफ a इंटू टी की जगह पर हमें रखना है v माइनस यू अपॉन a स्क्वायर. वी गॉट दिस half a into v minus u upon a square. So now multiplying, u से मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर तो हमें मिलेगा ub माइनस यू स्क्वायर अपॉन a, ub माइनस यू स्क्वायर अपॉन a प्लस a इंटू वी माइनस यू का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv. इसको ओपन कर दिया, वी माइनस यू होल स्क्वायर को, अपॉन a का स्क्वायर a स्क्वायर इंटू 2. सो यहां पर नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या मिलेगा? 1a से 1a आपका कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, ये एक a से आपका a की स्क्वायर हट जाएगा यहाँ से. सो हमें मिलेगा नेक्स्ट स्टेप में s इक्वल्स टू
यू बी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2ub अपॉन 2a। हमें यहां पर ये मिला। नाउ वी विल टेक एलसीएम। हम लोग एलसीएम लेंगे अब। तो एलसीएम क्या आएगा हमारा, a एंड 2a का एलसीएम क्या आता है, 2a। सो एलसीएम लेने के बाद a से इसको डिवाइड किया, वी विल हैव 2, और 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी विल हैव 2ub माइनस 2u स्क्वायर प्लस ये एज इट इज आ जाएगा आपका v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv। सो दिस इज 2ub प्लस का, दिस इज 2ub माइनस, सो दिस 2ub कैंसिल, और हमारे पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, s इक्वल टू दिस इज u स्क्वायर, दिस इज माइनस 2u स्क्वायर। सो क्या बचेगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस का 2u स्क्वायर है, ये प्लस का u स्क्वायर है, एक माइनस का u स्क्वायर हमारे पास बचेगा, एंड 2a। नाउ बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वी विल हैव v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2a इंटू s, एंड फाइनली वी विल हैव v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर को उधर ले जाएंगे, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। So we got our third equation, that is v square equals to u square plus 2as. So I hope you all will see this video repeatedly so that आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। मैं एक बार फिर से आपको बताता हूँ। हमारे पास जो सेकेंड इक्वेशन है that is s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इसको हमने कंसिडर किया फर्स्ट। नाउ the first equation v equal to u plus at, from here we will get at equals to, इस u को इधर ले जाइए, v minus u, and then t equals to v minus u upon a। now put this value of t, हमारे पास जो t की वैल्यू है वो क्या है, v minus u upon a। इस वैल्यू को आप इसमें प्लेस कर दीजिए, तो s equals to u into t की जगह पे v minus u upon a प्लस हाफ a, और t की जगह पे v माइनस यू अपॉन ए होल स्क्वायर। मल्टीप्लाइंग फ्रॉम u इन दिस इक्वेशन वी विल गेट ub माइनस u इंटू यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस नीचे ये a का स्क्वायर a स्क्वायर एंड 2, और a v माइनस यू होल स्क्वायर होता है v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2ub। ये कहाँ से आया आपका, a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वहाँ से हमने इसको रिप्लेस किया। नाउ फाइनली taking the LCM of these two, we will get the LCM 2a। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे we will get 2ub and minus 2ub, दोनों को कैंसिल आउट किया। फाइनली we have v स्क्वायर u स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर कितना हुआ, माइनस u स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, एंड फाइनली v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर को उधर ले जाएंगे, सो वी विल गेट v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। सो नाउ दीज आर द all three equations of motion. So practice these equations, these are very important. So thank you very much students for today's class. Have a good day.